Hello and welcome to yet another session of storytelling. I am Pankaj sir and today I welcome all the students of class 8. Students, I am here to teach you the third lesson of your English book, Glimpses of the Past. Students, now most of us are aware of the fact that India had a glorious past, and it was this country's splendor and prosperity that caused many foreign invaders. One of the foreign superpower captured this golden bird and ruled our country for a good 200 years was the British. So, in the British slowly transitioned their position from traders to rulers. Many Indians tried to protest against it, but it did not happen overnight. Students, this transition took place over hundreds of years in between 1757 to 1857, and the protest ultimately resulted in the revolt of 1857, or as we know it, the First War of Independence. Now, this transition period of some importance are worth remembering, and that is what we shall study about in this session, Glimpses of the Past, written by H.D. Sawant. Now, before we will be reading this story, let me introduce the life and works of the author H.D. Sawant. Students, H.D. Sawant was born in a small farmer family of Azara village in Kolhapur district in Maharashtra. He finished his schooling in Banketrao High School in Azara. He worked in a school named Rajaram Prashala in Kolhapur as a teacher for 20 years. Later, he became the editor with Lok Shikshan, a monthly magazine published in Maharashtra Education Department in Pune. Some of his written works are Our Freedom Movement, The Gandhi Story, The Story of Jawaharlal Nehru, Adhunika Nepala, and Swarajyacha Shaurya. Now, the story we shall read is taken from his book Our Freedom Movement. As the name suggested, the book narrates the story of India's freedom struggle. And now, without any delay, let's start line by line explanation of this story written in bubbles and speeches. Students, this story is written in a bubble style. Here is your chapter, The Martyrs. At the function in Delhi, O my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of Indian martyrs. आप देख सकते हैं यह एक दिल्ली में फंक्शन का चित्र है जिसमें शहीदों को याद करते हुए आप देख सकते हैं इस पिक्चर में लता मंगेशकर गीत गा रही हैं। उनके बगल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी जो हैं वो बैठी हुई हैं। वो कहती हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। द कंपनी कॉन्क्विस्ट्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में अंग्रेज़ एक व्यापारी के रूप में आए और भारत में सबसे पहले उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस कंपनी के माध्यम से वो भारत में व्यापार करते थे। धीरे धीरे वो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए, लेकिन उनकी वास्तविक महत्वाकांक्षा जो थी वो भारत के धन संपदा को लूटना था। जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। सोने की चिड़िया आखिर क्यों कहा जाता था? कारण यह था कि यहाँ अपार मात्रा में, प्रचुर मात्रा में धन संपदा
जो था वह स्थित था। तो सबसे पहले आप इसमें एक फिगर दिया गया है, आप देख सकते हैं इंडिया 1765, जिसमें आप देख सकते हैं जो येलो कलर है वह इंडियन प्रिंसेस यानी भारतीय राजकुमारों का क्षेत्र है, और जो रेड कलर से दिखाया गया है वो आपके अंग्रेज़ों का शासन जो है वह क्षेत्र है। विथ इट्स सुपेरियर वीपन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। भारत में अपने शस्त्रों के, अपने अस्त्रों के बल पे अंग्रेज जो थे भारत में 18वीं शताब्दी में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। इंडियन प्रिंसेस वेयर शॉर्ट साइटेड, भारतीय राजकुमार जो थे अदूरदर्शी थे, ज़्यादा दूरदर्शी वो नहीं थे, यानी दूरगामी सोच वाले नहीं थे। दैट ऑफ ए स्टार्ट राजा वाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, और यहाँ के अंग्रेज जो थे वो हमारे देश के राजाओं को आपस में लड़ाते थे, उसमें से एक राजा की मदद करते थे, उसकी मदद से दूसरे को हराते थे, फिर उसके साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। तो इसमें एक राजा कहता है कि जाओ अंग्रेज़ों को बुलाओ, उन व्यापारियों को बुलाओ, वो मुझे दूसरे राजा को हराने में हमारी मदद करेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, लोगों के बीच इन लगातार होने वाले युद्धों से शांति नहीं थी। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। ऐसे होने वाले लगातार जो युद्ध थे इससे भारतीय राजकुमार कमज़ोर होते गए और अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह उन्हें आसानी से हरा दिया। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till his death fighting। और मैसूर का जो राजा था जिसका नाम था टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली का बेटा था, वह अंग्रेज़ों से युद्ध किया, और युद्ध करते करते तब तक युद्ध किया जब तक युद्ध करते करते वो वीरगति को प्राप्त नहीं हो गया। Thank God there is a peace in the country now, no more wars and no looting by thugs। यहाँ कुछ लोग आपस में बात करते हैं, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे देश में शांति है, ज़्यादा युद्ध नहीं हो रहे हैं, ना ही लूटपाट है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि तो भगवान का देन है कि यहाँ अंग्रेज़ आए हैं, और डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विथ देम, हमारा सौभाग्य उनसे जुड़ा हुआ है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट ऑफ दिस कन्क्विस्ट, भारतीयों जो थे कैसे रिएक्ट करते थे। कुछ भारतीय रिएक्ट कर रहे हैं, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, कि अंग्रेज़ हमारे राजाओं को गद्दी से उतार दिए हैं, उन्हें मार दिए हैं। सम किंग्स वेयर नॉट गुड आफ्टर ऑल दे वेयर ऑफ दिस लैंड, वास्तव में कुछ राजा जो हैं अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे देश के हैं। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम बाहरी लोगों के यानी विदेशियों के गुलाम हो चुके हैं। थर्ड पार्ट में आप ब्रिटिश रूल के बारे में जानेंगे जो कि 1765 से 1836 तक था। रिलीजियस लीडर्स परचेज आइडिया लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, कुछ धार्मिक लोग जो थे वो छुआछूत और बाल विवाह को बढ़ा रहे थे, उसके बारे में विचार दे रहे थे। एनीवन हु क्रॉस द सीज लूजेज हिज रिलीजन, कुछ धार्मिक लोगों का कहना था कि यदि जो भी व्यक्ति है समुद्र पार करेगा तो उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि संसार में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, संताप हैं, सब औरतों के कारण है। द ट्रुथ was that Indian had lost self-respect, the British scorned them। सबसे बड़ी बात यह थी, सच्चाई यह थी कि भारतीय जो थे वह अपना आत्मसम्मान खो चुके थे, विदेशी उन्हें अपना गुलाम बना रहे थे। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, इन स्थानीय लोगों पे विश्वास करना, उनकी ईमानदारी पर विश्वास करना सही नहीं है। ट्रू योर ऑनर बट आई एम इनोसेंट, आप सही कह रहे हैं महाराज लेकिन मैं निर्दोष हूँ। बिंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, एक्चुअली
ब्रिटिश जो थे वो व्यापारी थे, वो तुरंत लाभ लेना चाहते थे, लाभ कमाना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्सेस फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स, उनके द्वारा लगाए गए भारी भरकम टैक्स किसानों को बड़ी भारी पड़े और उन्होंने खेती करना छोड़ दिया। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, कहता है एक किसान कि आपके आदमी हमारे सारे अनाज लेकर चले गए, मैं टैक्स कहाँ से दूँ। यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम पे आज भी पिछला कर्ज बाकी है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, यदि तुम अगले सप्ताह नहीं दोगे, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड द अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट, और इधर ब्रिटिश जो थे वो नए नए तरीकों को ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा नया नया तरीका लागू किया जाए जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। द गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, भारत में जो भी वस्तुएं अंग्रेज लाते थे वहाँ पे उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ा था। ऐसा इन्होंने निर्णय लिया कि जो भी वस्तुएं भारत में आएंगी विदेशों से, उन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अ गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, और धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों और कानूनों के चलते, उनके पॉलिसीज़ के चलते भारतीय जो इंडस्ट्रीज थे, उद्योग धंधे थे, वो बर्बाद होने लगे। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइन द एक्सपोर्ट आर्टिसियंस एंड देयर बिजनेस, यहाँ तक कि भारत में जो अच्छे अच्छे कारीगर थे, बुनकर थे, उनके भी व्यापार को, उनके भी बिजनेस को अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। राजा राम मोहन रॉय 1772-1833, देखिए उस समय में हमारे समाज में बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए थे। हमारे समाज में जड़ता, अंधविश्वास इतना जकड़ गया था कि लोग जो थे वो बिल्कुल इसी में डूबे रहते थे। इसी बीच हमारे देश में एक ऐसे व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ जिस व्यक्ति ने हमारे समाज को सुधारने का कार्य किया, सुधारने का प्रयास किया, और उन्हीं में नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का। आपको जानना चाहिए ये राजा राम मोहन रॉय ही थे जिन्होंने 1828 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक से कह के ऐसा कानून बनवाया जिस कानून से सती सिस्टम को समाप्त किया गया। सती प्रथा के बारे में आप जानते हैं, पहले हिंदू समाज में कोई भी पुरुष यदि मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसके चिता पे जिंदा जलकर उसे सती होना पड़ता था। वही राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने हमारे भारतीय समाज को सुधारने का काम किया। राम मोहन रॉय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. राजा राम मोहन राय जो एक बहुत ही असाधारण प्रतिभा के व्यक्ति थे, जो बंगाल से आते थे, उन्होंने समझा कि हमारे देश में कौन सी घटना घट रही है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट। उन्होंने कहा कि हमें अपने प्राचीन संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, ये महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, और हमने बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें सबसे पहले हम अपने समाज को हमें सुधारना है। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, अंधविश्वास हमें बर्बाद करते जा रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, कि गायें अलग अलग रंगों की होती हैं लेकिन उनके दूध का रंग एक ही समान होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग शिक्षा देते हैं लेकिन सभी धर्मों का सार जो है एक समान होता है। सभी धर्मों में मूल जो बातें होती हैं एक समान होती हैं। ही वॉज अट्रैक्ट बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो जो थे वो विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से काफ़ी प्रभावित थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उनका मानना था कि ज्ञान जो होना चाहिए वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, तार्किक और वैज्ञानिक होना चाहिए। ही क्रॉस द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर एंड टोल्ड देम,
वे इंग्लैंड भी गए, समुद्र पार किए, वे इंग्लैंड गए। वो जानना चाहते थे कि आखिर क्या कारण है जिसके चलते अंग्रेज इतने पावरफुल हैं। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स। उन्होंने अंग्रेज़ों से वहाँ कहा कि हम आपको अपने शासक के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको भी हमें अपने प्रजा के रूप में अवश्य स्वीकार करना होगा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूलर ऑन टू हिज सब्जेक्ट्स। आपको यह भी जानना होगा कि एक शासक का, एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है, क्या कर्तव्य होता है। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. उन्होंने समाचार पत्र को भी प्रकाशित करना शुरू किया, लेकिन संदेह से घिरे अंग्रेज भी उसे 1823 ईस्वी में बंद कर दिए। ऑपरेशंस यानी दमन 1765 से 1835 के बीच, यानी 1765 टू 1835 के बारे में अब हम जानेंगे। देखिए, ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ भारत में आए तो बिल्कुल यहाँ के लोगों ने उन्हें ये कहा कि आइए आप हमारे देश में हुक्म कीजिए, ऐसा नहीं था। अंग्रेज़ जैसे जैसे भारत में अपनी नीतियों को लागू कर रहे थे तो भारतीय लोग उसका विरोध भी करते थे, और उसी विरोधों का दमन करना अंग्रेज़ों ने शुरू किया। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन भारतीयों का दमन अंग्रेज़ों ने जारी रखा। In 1818 they had passed regulation third। 1818 में उन्होंने एक कानून पास किया जिसका नाम था रेगुलेशन थर्ड। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। इसके आधार पे किसी भी भारतीय को बिना कोर्ट में ट्रायल दिए उसे जेल में डाला जा सकता था। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business। और भारत में जो भी ब्रिटिश आते थे अधिकारी, उन्हें बहुत मोटे रकम दिया जाता था, सैलरी दिया जाता था, और वो अपने प्राइवेट बिजनेस को भी यहाँ करते थे। By 1829 Britain was exporting British goods with 7 करोड़ रुपीस to India। 1829 ईस्वी में ब्रिटेन से भारत में लगभग 7 करोड़ रुपए की राशि की वस्तुएं मंगाई गईं। द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industry began to die। अंग्रेजों का यह लूट जारी रहा, वहीं दूसरी तरफ भारतीय उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर पहुंच गए। गवर्नर जनरल बैंटिक रिपोर्टेड बैक टू होम। और उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक को वापस बुला लिया गया। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लेसिंग द प्लान्स ऑफ इंडिया। भारत के जो बुनकर थे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। डिसैटिस्फैक्शन, असंतोष। अंग्रेज़ों के इन पॉलिसियों से भारतीयों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। ये घटना 1835 से 56 तक चली। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। उस दौरान भारत में शिक्षा जो थी वह पारसी और संस्कृत भाषा में दी जाती थी। इन 1835 अ इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। उस समय 1835 ईस्वी में मैकाले नाम के एक अंग्रेज थे जिन्होंने एक सुझाव दिया परिवर्तन के लिए। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें यहाँ के स्थानीय लोगों को अंग्रेजी में शिक्षा देनी चाहिए। आई एग्री। उनका लोगों ने सहमति दिया, उनका समर्थन किया। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव प्रीटी जॉब्स अंडर देम। अंग्रेजी शिक्षा पाकर क्लर्क, किरानी के रूप में लोग जो होते थे तैयार होते थे, जिन्हें ब्रिटेन के लोग यानी अंग्रेज लोग अच्छी सैलरी और अच्छे जॉब देते थे। Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals। और इस तरह से अंग्रेजी शिक्षा पाकर हमारे यहाँ एक नए जनरेशन का, एक नई पीढ़ी का प्रादुर्भाव हुआ जो जागरूक पीढ़ी थी, शिक्षित पीढ़ी थी।
वी मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर्स, जिन्होंने सोचना शुरू किया कि हमें अवश्य अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मेटेरियल कंडीशन, और उनके आर्थिक स्थिति को भी सुधारना चाहिए। फॉर डैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवांसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और हमें अपनी मांगों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाना भी चाहिए। बाई 1856 द ब्रिटिश हैज़ कॉन्क्वीर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 ईस्वी आते आते भारत के संपूर्ण हिस्सों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट फिगर में दिखाया था, रेड मार्किंग जो था बहुत कम था, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य था, और सिर्फ येलो था। आप अभी के फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड कलर से जो भारत के चित्रित भूभाग है वो ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत पे अधिकार कर लिया था, और कुछ ही स्टेट्स ऐसे थे जो इंडियन प्रिंसेस के द्वारा रूल किए जाते थे। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, भारतीयों का बहुत कम ध्यान रखा जाता था। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, हमारा राजा जो है वह अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बन चुका है, और हम लोग अपने जॉब जो हैं खो चुके हैं। एंड लैंड्स, और भूमि भी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वे हमारे भाइयों को बदल रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, अब हमें सिर्फ बातें ही नहीं करनी होगी, हमें उन्हें भगाने के लिए भी उपाय करना होगा। द स्पार्क 1855 to 1857, अब लोगों में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी, जो कि स्पार्क यानी चिंगारी के नाम से जानी जाती है, जो कि 1855 से 1857 तक के बारे में हम जानेंगे। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीसेंट्स, लगातार बढ़ते टैक्स के कारण किसान बर्बाद हो गए। इन बंगाल द संथाल हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट, बंगाल में एक आदिवासी समूह होता था जिसको संथाल्स के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अंग्रेज़ों के द्वारा जो नई पॉलिसीज़ लागू की गई लैंड रूल, उससे उनमें बड़ा आक्रोश था। In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. और 1855 में सबसे पहले संथालों ने विद्रोह किया, और बहुत सारे यूरोपियों और उनके सपोर्टर्स जो थे, समर्थक, उनको मार डाला। Discontent was growing in the ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में भी असंतोष की ज्वाला भड़क उठी, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय सैनिक भी जो थे वो एम्प्लॉय थे। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, बताया जाता है कि जो अंग्रेज़ आर्मी के लोग थे, अंग्रेज़ आर्मी जो थी, ब्रिटिश आर्मी, उनको ज़्यादा सैलरी मिलता था। वाइल वी गेट अ पीटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि भारतीयों को बहुत कम पगार मिलता था, इनको प्रमोशन भी जल्दी नहीं मिलता था। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, इनका यह भी मानना था कि अंग्रेज इन्हें समुद्र पार करा के ले जाना चाहते थे, जो कि इनके धर्म के खिलाफ था। हु इज़ द टोपी वाला टू एबोलिश आवर ओल्ड एज कस्टम, ये कौन होते हैं टोपी वाले यानी अंग्रेज, जो हमारे प्राचीन परंपरा को तोड़ रहे हैं। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें यहाँ से अंग्रेज़ों को अवश्य भगाना होगा। सिपोय यहाँ पे जो यूज़ किया गया है ये सिपाही के लिए है। सिपाही को ही ब्रिटिश लैंग्वेज में सिपोय कहा जाता है। सिपोय मंगल पांडे अटैक द एडजेंट एंड हिज रेजिमेंट एंड वाज एक्सक्यूटेड, मंगल पांडे सबसे पहले सैनिकों में विद्रोह किए और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। Thousands of other सिपोय रिवोल्टेड, दे वेयर स्ट्रिप्ड टू देयर यूनिफॉर्म्स, बताया जाता है कि हजारों की संख्या में अब सैनिकों ने विद्रोह कर दिए, उन्होंने अपने यूनिफॉर्म उतार दिए। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन, जिनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम और द पीपल्स माइंड, कुछ ही ऐसे अंग्रेज थे, बहुत कम नाम मात्रा के, जो भारतीय संस्कृति सभ्यता को समझते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द
grease on the bullet you have to beat is made from the fat of cows and pigs. What the white man has deceived us to. उसी समय सैनिक विद्रोह का मुख्य कारण था, उस समय एक विशेष प्रकार का राइफल सैनिकों को चलाने के लिए दिया जाता था, जिसमें जो कारतूस भरा जाता था उसको दांतों से खींचकर उसके ऊपर के लेदर को हटाया जाता था। अंग्रेजों ने बताया कि उसके बुलेट में जो लेदर ऊपर लगा हुआ है वह या तो गाय के मांस का या सुअर के मांस का लगा हुआ है, जिससे हमारे देश के लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their service। और बहुत जल्द ही गांव-गांव में रोटियां भिजवाई गई लोगों को इकट्ठा करने के लिए। उस समय मैसेज देने का यही तरीका होता था कि लोग पत्ते रोटियां भिजवाते थे और वह एक संदेश का माध्यम होता था जिससे लोगों को एक जगह जुटाया जाता था। तो ऐसी रोटियां गांव-गांव में भेजी गई और साथ ही साथ लोगों को इकट्ठा किया गया कि हमारे जो इम्पेरर हैं, उस समय इम्पेरर थे हमारे यहाँ मुग़ल इम्पेरर, कि सभी लोग उनको सहयोग करें ताकि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जाए। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। हमारे गांव के सभी लोग बिल्कुल तैयार होंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमॉन्ग द इंडियन सोल्जर्स। अंग्रेजी सैनिकों के विरुद्ध भारतीय सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए उनके बीच कमल के फूल का वितरण कराया गया। डेथ टू द फॉरेनर्स। और लोगों ने प्रतिज्ञा लिया कि अब विदेशियों की मृत्यु होगी, वो यहाँ से भगाए जाएंगे। द मासेस गेव ऑल हेल्प द सोल्जर्स टू द पैट्रियट्स। और जितने भी लोग थे उनमें देशभक्ति की ज्वाला जो थी वो भड़क उठी। रिवोल्ट। अब देखिए ये रिवोल्ट जो था, विद्रोह जो था 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वो जो था वो शुरू हुआ। देन देर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। सबसे पहले मेरठ में एक भयंकर विद्रोह हुआ। द सिपोज मार्च टू दिल्ली। वहाँ से सिपाही सीधे दिल्ली चले गए। लॉन्ग लीव और इम्पेरर बहादुर शाह। और उस समय जो मुग़ल इम्पेरर थे उनके दरबार में सभी लोग इकट्ठा हुए, कहे मुग़ल बादशाह बहादुर शाह अमर हों। उनका नारा लगाया गया। उनके नेतृत्व में भारतीयों ने विद्रोह करने की ठानी। द रिवेलियन स्प्रेड वाइडर। विद्रोही चारों तरफ बिल्कुल फैल चुके थे। मैनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकेम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वेयर सोर। बहुत ऐसे भारतीय जमींदार थे जिन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण अपने भूमि को खो दिया था, उनमें भी गुस्सा था। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। अंग्रेजों का शासन अवश्य अंत होना चाहिए। येस वी विल हेल्प यू। हाँ, हम आपकी मदद करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम। अब आज़ादी के लिए जो था वह लोगों ने कमर कस लिया और विद्रोह करना शुरू किया। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वी आर बीटर। बहुत सारे जो पहले के रूलर थे जिनके राज्य को अंग्रेजों ने छीन लिया था, वो बहुत ही गुस्से में थे। जैसे कि उसी में से एक थी लखनऊ की बेगम हजरत महल। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। अंग्रेजों ने मेरे साम्राज्य को छीन लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्लाह ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल। उसी समय एक बहुत ही बड़े लीडर थे मौलवी अहमदुल्लाह जो कि फैज़ाबाद के थे। उन्होंने लोगों से कहा, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड। जागो भाइयों जागो, अंग्रेज हमारे भूमि को बर्बाद कर रहे हैं। दे ज्वाइन द अपसर्ग अगेंस्ट द फॉरेनर्स। और ये सभी लोग जो थे मिलकर विदेशियों के खिलाफ आवाज़ उठाए। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद। हर जगह के लोगों ने विद्रोह में हिस्सा लिया, चाहे वो कानपुर के हों, बरेली के हों या इलाहाबाद के हों। अज़ीमुल्लाह खान टोल्ड तात्या टोपे। तात्या टोपे भी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। उनसे अज़ीमुल्लाह खान ने कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे जो पेशवा होंगे, नाना साहब होंगे, जो इस युद्ध में हमारा नेतृत्व करेंगे। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव अ बुलेट इन हिज ब्रेस्ट। आपको पता होगा 80 साल के एक जमींदार थे
जगदीशपुर आरा के, जिनका नाम था बाबू कुंवर सिंह, उन्होंने इस उम्र में अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया और युद्ध के दौरान उनके हाथ में जो था वह गोली लगा। उस हाथ को उन्होंने काट कर गंगा पार करते समय गंगा जी को चढ़ा दिया और कहा, मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। माँ गंगा, ये मेरी अंतिम आहुति है, आपको मैं चढ़ा रहा हूँ। द पैट्रियोट्स पाउंड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पीसेस बैटर ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। और जितने भी देशभक्त थे सब लोग जो थे विद्रोह करके अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाए और पूरे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में यह विद्रोह जो था वह फैल गया। ये था एक झांकी, एक झलकी जो कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट का था, जो कि हमारे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम इस पार्ट से संबंधित क्वेश्चंस आंसर्स को देखेंगे। सबसे पहले कंप्रीहेंशन चेक के कुछ क्वेश्चंस हैं। Look at the picture first and recall the opening lines of the original song in Hindi. Who is the singer? Who else do you see in this picture? मैंने आपको जब पहला तस्वीर दिखाया था तो उसमें बताया था कि ये ओरिजिनल सॉन्ग जो है वो है ऐ मेरे वतन के लोगों, और इसकी सिंगर कौन है? लता मंगेशकर हैं। उस तस्वीर में मैंने आपको किनके फिगर को बताया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के, लाल बहादुर शास्त्री के, इंदिरा गांधी के, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। जो नीचे फिगर था भारत माता, उसमें ये सारे लोग दिखाई दे रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है, इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वीपन्स? पिक्चर 2 में आप कंपनी के सुपीरियर वीपन्स जो हैं, शस्त्र हैं, उसके बारे में क्या जानते हैं? तो द कंपनी सुपीरियर वीपन्स मीन ऑल देयर विट्स, स्ट्रेंथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एन आर्टिसियंस? वाई डू यू थिंक द आर्टिसियंस सफर्ड? इसमें आर्टिसियंस कौन सा है और वो क्यों आर्टिसियंस जो हैं वो पीड़ित हैं? एन आर्टिसियंस इज ए स्किल्ड मैनुअल वर्कर हु क्राफ्ट्स आइटम दैट मे बी फंक्शनल और द स्ट्रिक्टली डेकोरेटिव। द आर्टिसियंस सफर बिकॉज द ब्रिटिश वेयर एक्सट्रैक्टिंग वेरी हाई टैक्सेस फ्रॉम देम which ruined them economically. Moreover, machine manufactured goods imported from the Britain were sold extremely, which ruined the business of the artisans' handmade goods. Question number 4. Which picture, according to you, reveals the first spark of the fire of revolt? As picture 7, the spark reveals the first spark of the fire of revolt. Working with text. अब हम आते हैं किताब के क्वेश्चंस पे जो कि आपके एक्सरसाइज में है। Do you think the Indian princes were short-sighted in their approach to the event of 1757? क्या भारतीय राजकुमार अदूरदर्शी थे? Yes, the Indian princes were short-sighted in their approach to the events of 1757. Next question, how did the East India Company subdue the Indian princes? भारतीय राजकुमारों को ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे हराई? The Indian princes were constantly at war with each other. They called the English merchants to help them in their fights. The people had no peace due to such constant fights. The rivalries helped the East India Company subdue the Indian princes one by one. Quote the words used by Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principle. राजा राम मोहन राय के उस कमेंट को लिखना है जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी धर्मों का सार एक समान होता है। आपका आंसर है, अकॉर्डिंग टू राजा राम मोहन रॉय, cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. Question number 4. In what ways did the British officers exploit Indians? किस तरह से
ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीयों का शोषण किया। द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइटेड इंडियन इन मेनी वेज। They imposed heavy taxes on Indian farmers and reduced import duty on goods manufactured in England and imported to India. Even they cut the thumbs of expert artisans. Next question. Name these people. The ruler who fought peace battle against the British and died fighting. कुंवर सिंह। आंसर क्या होगा? कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। जो व्यक्ति समाज सुधार करना चाहता था। आंसर राजा राम मोहन राय। द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वह व्यक्ति जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करना चाहते थे। मैकाले। टू पॉपुलर लीडर्स हु लीड द रिवोल्ट। दो ऐसे मशहूर लीडर्स का नाम बताना है जिन्होंने रिवोल्ट विद्रोह का नेतृत्व किया। मौलवी अहमदुल्लाह ऑफ फैजाबाद एंड पेशवा नाना साहब। मेंशन द फॉलोइंग। टू एग्जाम्पल ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देम। उस समय दो ऐसे हमारे समाज के गलत आचरणों को लिखना है जो उस समय समाज में फैले हुए थे। आपका है अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। टू ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। अंग्रेजों के दो दमनात्मक नीतियों के बारे में। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू डू अवे विथ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गुड मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड। दिस severely affected Indian industries. In और second है in 1818 they passed regulation third under it an Indian could be jailed without trial in a court. Two ways in which common people suffer. दो ऐसे तरीके बताना हैं जिससे भारतीय लोग पीड़ित थे। तो they lost their old jobs and lands. They were being converted by the British. Four reasons for the discontent that led to the 1857 War of Independence. चार कारण बताने हैं जो 1857 के विद्रोह के लिए जिम्मेवार थे। पहला है Indians had become slaves in their own country. सेकेंड है The East India Company destroyed Indian industries. थर्ड है There was huge differences in the treatment of the Englishmen and the Indians. और चौथा है The use of grease on the bullet was spoiling the customs of Indians as it was made of the fat of cows and pigs. Working with language. Indirect speech में बदलना है आपको। इसका आंसर इसमें दिया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है आपका आंसर, आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। ओके, सो ये चैप्टर आपका अब समाप्त होता है। यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूँगा। ओके, दैट्स ऑल।